Hi students, again you are most welcome in grade 5 and this is the second class. Yesterday we read about the earth and your first lesson is on progress. Certainly we enjoyed last day and today we will go ahead from we left yesterday. Your first lesson, the earth as a globe is running, and today I got many answers from your side and most of the students gave very nice answers. I'm much satisfied with your answers and I know that you are very excellent students and you take interest in the study. Now, but I found that number of students made mistake in making globe, and that was yesterday. That was the first class, and some students could not understand properly. So then I would recap what did I read yesterday. Then let's come back again. Yesterday we read about the earth and many of you wrote some lines about earth and some students gave very correct answer. By and large, you know more about the earth, but you know that earth is so huge, earth is so vast, it is not known fully by anyone. Present day, we are trying to know more and more about the earth. But being the student of grade 5, you gave almost right answers. Earth, you have read the earth is a vast, very vast body and it's round in shape. Earth, and one student gave the answer that earth is round in shape. It was proved by Ferdinand Magellan. Absolutely right, student. Ferdinand Magellan was a navigator. Ferdinand Magellan was a sailor, and when he sailed his boat in ocean, he reached at the same point. After long running into the ocean, he reached on the same point from where he started his journey, and he proved that earth is round in shape because he reached to his starting point after a long voyage, after a long journey. Voyage, you should be familiar with the word. Voyage, V-O-A-Z. Voyage means Samudri Yatra. That means when we travel into the ocean, that is called voyage. Voyage means Samudri Yatra. And there are many things about the earth. But to know more about the earth, we use a globe. Certainly. So yesterday we made globe and we mentioned the latitudes and longitudes at first equator 0 degree, but some of you could not understand properly. So I would like to go again on that point. That is, I am going to make a globe again. This is your, you know that earth is round in shape and we take a model of earth, that is globe. Yesterday, at first I drew this line. Dear students, this is very important to know. Your earth is like a ball. Your earth is like a ball because ball is round in shape and your earth is also round in shape.
And I told yesterday that your earth is slightly flat. Some students use a little bit flat. No, slightly flat on the top. On the top means on the top and in the bottom. Like an orange, you have eaten orange, you have seen orange. Orange top and bottom is a little bit flat. Orange is round in shape, like a ball, like your earth, but it's a flat on the top and in the bottom. Sure. So I drew this line yesterday, and I called this line equator. What did I say? Equator. Yes, friends, you are very good student. So just you can understand this. Equator. And equator is denoted by 0 degree. इक्वेटर को हम लोग कितने डिग्री से डिनोट करते हैं? इक्वेटर के लिए क्या डिग्री रखते हैं? 0 डिग्री. 0 डिग्री. ये 0 and this degree. 0 degree. Equator. And I told you that equator, what does equator do? इक्वेटर करता क्या है? इक्वेटर का क्या काम है? ये आपका अर्थ है. अर्थ को डिवाइड करता है 2 सेमी हाफ्स. 2 सेमी हाफ्स. Like this. Suppose this is a ball, and ball has been cut from the middle. That means this line equator divides the earth into 2 halves, 2 semi-spheres. Half means 1 half, and another half. Suppose you two friends meet a quarrel. तुम लोग दो दोस्त हो और 2 दोस्त में झगड़ा हो जाती है किसी को लेकर के, एक गेंद को लेकर के, और कहते हैं ये मेरा गेंद है, ये मेरा गेंद है. तो बाद में पता चलता है गेंद तुम दोनों का है, तुम दोनों ने मिल करके इसको बाजार से खरीदा था. अगर एक बॉल 10 रुपए में आई थी, उस बॉल में तुमने 5 रुपए दिए और तुम्हारे फ्रेंड ने कितने दिए? उतने ही रुपये दिए, 5 रुपये. तो बॉल आया 10 रुपये में. बाद में झगड़ा हो गया और एक दोस्त ने कहा जो बॉल को मुझे मेरा हिस्से का बॉल दो. तो आधा पैसा लगा था, तो बॉल कितना दो? आधा दो. तो जब बॉल को आधा काटा जाएगा बीचों बीच, तो ये इस प्रकार का ये हो जाएगा आधा, सेमी हाफ. इसको 1 हाफ कहते हैं. और उस बॉल का ये दूसरा हाफ, यानी इसको अगर जोड़ देंगे तो ये फिर से एक ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये इक्वेटर जो है, ये इसको 2 भाग में बांट देता है, आधा भाग में. इक्वेटर को सबसे पहले इक्वेटर को डिफाइन करना सीखो. इक्वेटर के बारे में क्या कहेंगे, और जब हम आपसे मिलेंगे स्कूल में तो हम पूछेंगे जो आपने ज्योग्राफी को, जो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, ज्योग्राफी को कैसे समझा. तो सबसे पहले इक्वेटर को आप डिफाइन करिए. तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री है. इक्वेटर इज डिनोटेड बाय 0 डिग्री. We will use English language. Why? Because our medium is English and you are the students of English medium school. So you must speak English every now and then. Then you will feel very tuned in English. Your English will be smooth and you will be able to have frequent conversation in English. So that means to speak fluent and frequent, you must use English while you study and whenever you get opportunity to give answers inside the classroom and anywhere. So equator, this is Earth, and equator is an imaginary line. Equator is a line which divides the Earth into 2 semi-halves, 2 semi-halves. One is northern hemisphere and another is southern hemisphere. Equator is an imaginary line which divides the Earth into 2 hemispheres, northern hemispheres and southern hemisphere.
ये आधा भाग जो है, ये आधा, ये क्या कहलाया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये भाग क्या कहलाया? साउदर्न हेमिस्फीयर। ये साउदर्न हेमिस्फीयर क्यों कहलाया? एस का मतलब क्या लिखा हमने? साउदर्न, और एच का मतलब लिखा हेमिस्फीयर। यानी ये आधा जो दक्षिण का हिस्सा, साउथ का, इसको एस एच क्यों लिखा, इसको एनएस क्यों लिखा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्यों लिखा? क्यों कि ये इक्वेटर के नॉर्थ में है। इक्वेटर के नॉर्थ में, यानी जब हम कोई मैप बनाते हैं या ग्लोब बनाते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा जो टॉप होता है वो क्या कहलाता है? नॉर्थ। क्या कहलाता है? वेरी गुड। और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? साउथ। तो ये इक्वेटर से ऊपर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न। ये नॉर्दर्न कहलाएगा, नॉर्दर्न पार्ट। और ये क्या कहलाएगा? जो नीचे की ओर है, जो इक्वेटर से नीचे है, वो कहलाएगा साउदर्न पार्ट। अब ये आधा है, ये आधा है, तो इसलिए इसको हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर का क्या मतलब होता है? एक्स फॉर हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर मतलब होता है हेमिस्फीयर, SPHERE। राइट डाउन इन योर नोटबुक, ऑलवेज यू मस्ट यूज नोटबुक। हेमिस्फीयर मीन्स हाफ या सेमी। Hemisphere. Northern hemisphere, this part is called northern hemisphere. This part and this part southern hemisphere. Now your point is clear. You have understood. Equator is a line which divides the earth into two halves. दो आधे भाग में पृथ्वी को बांट देती है, अर्थ को बांट देती है। ये हिस्सा क्या कहलाता है? नॉर्दर्न, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। और इस इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। यहां तक तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप इसको नोटबुक में लिख चुके हैं, देख चुके हैं। मैंने एक यहां पे एग्जांपल भी दिया। तो आप दो फ्रेंड आपस में झगड़ा हो गया, और आप दोनों का बॉल था, आपने बाजार से खरीदा था 10 रुपीज दे करके। 5 रुपीज आपका लगा था और 5 रुपीज आपके दोस्त का लगा था, फ्रेंड का लगा था। अब जब उसको बीच से बॉल को काटा गया तो कैसा हिस्सा बनेगा? ठीक है, ऐसे इस बॉल को यहां जोड़ देंगे तो बॉल ऐसा हो जाएगा। तो ये बॉल जब आधा, ये आधा अर्धगोला, इसको हाफ कहते हैं, सेमी हाफ। तो ये काम इक्वेटर करता है, पृथ्वी को बांट देता है। ऐसा है नहीं, एग्जैक्टली ऐसा आपको दिखेगा नहीं, लेकिन टू नो मोर अबाउट द अर्थ वी हैव ड्रॉन सच लाइंस एंड दैट इज मेंशन्ड ऑन ग्लोब। इन नेक्स्ट क्लास we'll have a globe. For the first time you will take a globe to better study, to better understanding. Now I'm going to make again a globe. Let's see, and you have to make all the points. I can make a globe. Yes, इक्वेटर, बीच से बीचों बीच 0 डिग्री, और एक आपने यहां जो नॉर्थ, यहां साउथ लिखा था, एक लाइन आप डायरेक्ट सीधे इसको नॉर्थ और साउथ को जोड़ते हुए खींचेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? इस लाइन को आपने कहा 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये इक्वेटर हो गया। और यहां पे एक और लाइन खींचेंगे, ये भी खींचेंगे सीधी रेखा, और यहां से थोड़ा सा रेखाएं, लाइन जो आपका कर्व होना शुरू हो जाता है, ये यहां से लगभग करेंगे। लाइक दिस।
There are many lines between. Let's know at first. These lines are called parallels. ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है, और ये इस लाइन, सारी लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? लैटिट्यूड्स. क्या कहलाता है? लैटिट्यूड्स. You have to know about the latitudes and longitudes. What are latitudes and longitudes? These all the lines are called latitudes, and these lines are called longitudes, right? So that means latitudes, ये जो लाइन आप ये दो देख रहे हैं, और ये भी, these lines are called latitudes, and these lines are called longitudes. Clear? This concept is clear? ये जो रेखा जा रही है, आपने इसको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिया यहां पे, तो यहां पे आप जो इक्वेटर है, आपका इक्वेटर लाइन कौन सा? ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री. आप यहां पे लिख लीजिए वेस्ट, और यहां पे लिख लीजिए ईस्ट. ये डायरेक्शन को दिखाता है. तो जो भी लाइन, जो लाइन वेस्ट से ईस्ट की ओर गए, वर्टिकल लाइन, जो लाइन आपका हॉरिजॉन्टल है, ओरिजिनल लाइन 3 पे क्या होते हैं, आप पढ़े होंगे, ये आपकी रेखाएं हैं, आप इसको जानिए. ये लाइन क्या कहलाता है? वर्टिकल लाइन. वर्टिकल. ये क्या कहलाता है? डायगोनल. और ये लाइन क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल. तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के लाइन आप लोग देखते हैं. This line is called horizontal. This line is called vertical line, and this is called diagonal line, and this is horizontal line. ये जो horizontal है, ये सारी जो ऐसे ये है, ये horizontal line है. ये देख रहे हैं horizontal line, ये सभी latitudes हैं. और ये जो आ रहा है, जो आपके नॉर्थ पोल से, ये नॉर्थ डायरेक्शन पे, यहां पे नॉर्थ पोल भी लिख देंगे, और ये हो गया साउथ पोल. नीचे में साउथ पोल और ऊपर नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल से जो लाइन ऐसे कर्व होकर के, ये रेखा कर्व लाइन कहलाती है, ये कर्व होकर के साउथ पोल से गुजरती है, इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स. और लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ये मैं पूछूंगा आपसे. लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है. मेरिडियंस. उसी तरीके से लैटिट्यूड्स को क्या कहा जाता है? लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स कहा जाता है. यहां पे इसका दूसरा नाम पैरेलल भी, आप पैरेलल्स. इसको पैरेलल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक दूसरे से नहीं मिलते हैं. ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये कहीं भी चलते जाएंगे, जितना भी आगे जाएंगे, ये एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा. ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा. ये लाइन कितना भी बढ़ते जाए, तो ये मिलेगा. ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, इसीलिए इस लाइन को पैरेलल लाइंस कहते हैं. तो जो लैटिट्यूड्स है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये दीज ऑल आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, एंड लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड पैरेलल्स. लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहते हैं, याद रहेगा आपको. और लॉन्गिट्यूड्स जो है, ये जो आपकी जो रेखाएं ऐसे नॉर्थ पोल से जाकर के यहां साउथ पोल से गुजरती है, ये इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स. और लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहते हैं? मेरिडियंस. लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है.
लैटिट्यूड्स को मेरिडियन भी कहा जाता है। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। अब आप देखिए जो कितने मेन लैटिट्यूड्स हैं। नाउ वी हैव टू फोकस द मेन लैटिट्यूड्स। सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन है? 0 डिग्री इक्वेटर। ये 0 डिग्री जो आपका ये है, ये 0 डिग्री जो ये इस डायरेक्शन है, इसको कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पहले भी बताए, पहले भी लिखे। इक्वेटर इज अ लाइन which divides the earth into two hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere। इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर से नीचे साउथ में साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अब तो हो गया। अब जो मेन लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन है? इक्वेटर से 23.5 डिग्री, ये इक्वेटर है, यहां भी 0 डिग्री लिखे। इसको सपोज करिए ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। This 23.5 degree north latitude is called Tropic of Cancer। Tropic of Cancer। Tropic of Cancer क्या है? ट्वेंटी एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। 0 डिग्री को आप इक्वेटर कहा, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को, जो नॉर्थ की ओर जो लैटिट्यूड ये गया आपका ये इसको मान लेते हैं 23.5 डिग्री है वो उस पे है, इसको कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यही चीज अगर 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तब ये कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। And I hope that you have books. You can see your book also. Social science book. This is Tropic of Capricorn. 23.5 degree north latitude is called Tropic of Cancer. 23.5 degree south is called Tropic of Capricorn. Now come on the 66.5 degree. ये डायरेक्शन कौन सा हो? साउथ है, पहले भी हम इसको साउथ लिखे हुए। साउथ लैटिट्यूड इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहां पे जो इस लाइन को हमने दिया 66.5 डिग्री,